Assalamu alaikum students. I hope you all are fit and fine by the grace of Allah. This is lecture number 9 of class 10th and subject is English. Our today's topic is comprehension questions of unit 4 and title of unit 4 is population growth and its impact on environment. So let's start our today's class. First question is, why is there no single and easy solution to the problem of population growth and its impact on environment? आबादी के बढ़ने और उसके असरात का कोई एक आसान हल क्यों नहीं है? Students, keep one thing in your mind that whenever you will write answer for any question, you will have to write heading for that. First of all, you will write heading. And the heading for this answer is, there is no single solution. And answer is, there is no single and easy solution to the problem of population growth and its impact on environment, because population growth does not create a single environmental problem. Rather, a number of problems emerge from overpopulation. Emerge means create. Like environmental catastrophe. Catastrophe means afat, musibat. Deforestation and pollution, etc. The solution must have several options. Like people should be educated about their actions and their effects on the environment. The amount of resources we consume on daily basis as individual should be reduced. For example, take shorter showers in bathing. Say no to the use of plastic bags. Buy less and recycle your waste. अच्छा, यहाँ पे आबादी के बढ़ने और उसके असरात की कोई एक आसान हल न होने का रीज़न बताया गया है क्योंकि इससे कोई एक माहौलियाती मसला क्रिएट नहीं होता बल्कि बड़ी तादाद में मसले उठते हैं, जैसा कि माहौलियाती आफत, दरख्तों का कटाव, आलूदगी, और फिर इसके हल के लिए बहुत से ऑप्शंस भी होने चाहिए, जैसा कि लोगों को उनके कामों और फिर उनका माहौल पर जो असर होता है उसके बारे में आगाह किया जाए, वसाइल के इस्तेमाल को कम किया जाए, नहाने के दौरान को कम किया जाए, मतलब कि पानी कम यूज़ किया जाए नहाने के दौरान, ठीक है। प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल से गुरेज किया जाए, जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिसाइकल किया जाए, दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाया जाए, ठीक है। क्वेश्चन 2, हाउ इज़ द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अर्थ अफेक्टेड? ज़मीन की कफालत कर पाने की या उठा पाने की, बर्दाश्त कर पाने की जो सलाहियत है वो कैसे मुतासर हुई? Heading for the answer is carrying capacity of earth affected. Carrying capacity is defined as the maximum population size that an environment can sustain. Sustain means bear, बर्दाश्त कर पाना. Indefinitely. Indefinitely means for an unlimited time period, लामहदूद वक्त के लिए. Generally, there are 4 variables that factor into calculating carrying capacity. Variables means elements which can change, अनासिर जो तब्दील हो सकते हैं. फैक्टर वैसे तो एजेंट्स या अनासिर को कहा जाता है, लेकिन इन्फ्लुएंस के सेंस में यहाँ पे यूज़ हुआ है. एक मीनिंग जो इसका इन्फ्लुएंस भी होता है, असरअंदाज होना, ठीक है. फैक्टर्स इनटू कैलकुलेटिंग कैरिंग कैपेसिटी: food availability, water supply, living space, and environmental conditions. In the case of humans, the calculation is much more complicated. Our metapopulation is diverse, widespread, and affected by a large multitude of unique variables. Multitude means तादाद, मिक़दार. Unique variables including technological advancement, disease, and energy कंजम्पशन. अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी को डिफ़ाइन किया गया है कि वो क्या होता है. ज़्यादा से ज़्यादा आबादी का वो साइज़ या हुजम जो कि एक माहौल उठा सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, उसको कैरिंग कैपेसिटी कहा जाता है. और 4 फैक्टर्स या अनासर हैं जो कि कैरिंग कैपेसिटी पे असरअंदाज होते हैं. कौन कौन से? खुराक और पानी की फराहमी, रहने की जगह और माहौलियाती सूरत हाल. और इंसानों के मामले में ये हिसाब किताब और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि हमारी जो मेटा पॉपुलेशन या काइंड ऑफ पॉपुलेशन है वो मुख्तलिफ़ तरह की है, वसी पैमाने पे फैली हुई है, और वो असरअंदाज भी होती है किन चीज़ों से? बड़ी तादाद में जो मुनफरिद वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं उनसे. और वो कौन कौन से हैं?
3 चीज़ें, तकनीकी तरक्की, बीमारी और तवानाई का इस्तेमाल। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, वाई डज पॉपुलेशन ग्रोथ डायरेक्टली अफेक्ट द इन्वायरमेंट? यानी आबादी माहौल पे बर रास्त असर क्यों करती है? हेडिंग फॉर द आंसर इज पॉपुलेशन ग्रोथ डायरेक्टली अफेक्ट द इन्वायरमेंट, and the answer is population growth directly affects the environment because an increase in population means an increase in consuming more resources and producing vast quantity of waste materials. Population growth is associated with negative environmental and economic outcomes ranging from the impact of overpopulation, deforestation, and water pollution to eutrophication and global warming. यूट्रिफिकेशन असल में बच्चे ये एक साइंटिफिक टर्म होती है जिसमें पानी की आलूदगी को डिफ़ाइन किया जाता है कि पानी इतना ज़्यादा आलूदा या कई ज़्यादा होता है कि उसके अंदर जो जानदार मौजूद हों उन तक ऑक्सीजन तक नहीं पहुंच सकती, जो माहौल में या फिर पानी में ऑक्सीजन होती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे रीज़न्स बताई जाती हैं कि आबादी के बढ़ने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल इस्तेमाल होंगे, ज़्यादा मकदार में बेकार मवाद भी पैदा होगा, वेस्ट मटेरियल पैदा होगा। आबादी में इजाफा जो है वो मनफी माहौलियाती और माशी नताइज से भी जुड़ा होता है साथ ही साथ। और ये किस वजह से होता है? ज़्यादा काश्तकारी की वजह से। ज़्यादा लोग होंगे तो उनकी ज़रूरियात खाने पीने की पूरी करने के लिए ज़्यादा काश्तकारी की जाएगी। फिर दरख्तों का कटाव, पानी की आलूदगी से लेके यूट्रिफिकेशन के प्रोसेस तक, और फिर आलमी दर्जा हरारत में इजाफे तक। ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो माहौल पे असरअंदाज होती हैं, रीज़न्स हैं ये माहौल पे असरअंदाज होने की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, एनालाइज एनी पैसेज ऑफ द टेक्स्ट पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट एंड आइडेंटिफाई की आइडिया एंड इट्स सपोर्टिंग डिटेल्स। अच्छा, यहाँ पे आपने किसी भी पैसेज का जायज़ा लेना है और उसके मेन आइडिया या की आइडियाज़ बताने हैं और उसकी सपोर्टिंग डिटेल्स भी देनी है। ठीक है। हेडिंग फॉर द आंसर इज की आइडिया ऑफ द पैसेज। द की आइडिया ऑफ द थर्ड पैसेज इज दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ हैड मोस्ट सिवियर इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। इंडस्ट्रियलाइजेशन गेव राइज टू अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मीन्स शहरी आबादकारी, मतलब जो मज़ाफ़ाती इलाके हों, रूरल एरियाज़ हों, उनमें फैक्ट्रीज़ वगैरह लगाई जानी शुरू कर दें, रोड्स तामीर किए जाएं, कस्बे वहाँ पे बनाना शुरू कर दिया जाए, ये सारा प्रोसेस। ठीक है। When agriculture societies became more industrialized and urban, and workers moved towards manufacturing hubs in cities to obtain jobs in factories. Manufacturing hubs mean ऐसे फैक्ट्रीज़ वगैरह के मराकज़ जहाँ पे ज़्यादा फैक्ट्रीज़ लगाई जाएँ, जहाँ पे चीज़ें बनाई जा रही हों, मैन्युफैक्चर की जा रही हों, तैयार की जा रही हों। ठीक है। सेकेंडली, ह्यूज क्वांटिटीज़ ऑफ पोल्यूटेंट्स आर बीइंग लेट आउट इन द एयर, वाटर एंड लैंड बाय वेरियस इंडस्ट्रीज़। अब जैसे थर्ड पैसेज का की आइडिया यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सनतकारी का माहौल पे बहुत शदीद असर पड़ा है, ये की आइडिया है थर्ड पैसेज का। शहरी आबादकारी या ये जो अर्बनाइजेशन होती है ये बढ़ी है। किस वजह से? जब ये अर्बनाइजेशन बढ़ी है तो ज़री माशरे सनती और शहरी बन चुके हैं। कारकुनों ने कारखानों में जॉब्स हासिल करने के लिए उधर का रुख किया है। और दूसरा ये कि बड़ी मकदार में आलूदा मवाद जो है वो इन फैक्ट्रीज से पानी ज़मीन पे छोड़ा जा रहा है और साथ ही साथ हवा में भी। ठीक है। यहाँ पे की आइडियाज़ क्या हैं? सनतकारी का माहौल पे शदीद असर पड़ा है और साथ उसकी फिर रीजंस बताई गई हैं। ठीक है। क्वेश्चन 5, लोकेट एग्जाम्पल फ्रॉम द टेक्स्ट पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट दैट सपोर्ट एन ओपिनियन। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल्स फाइंड आउट करें जो कि किसी ओपिनियन या पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करें। सो हेडिंग फॉर द फिफ्थ आंसर इज examples to support an opinion. Answer is the first paragraph supports the opinion that population growth has direct impact on environment.
The second paragraph supports the opinion that deforestation can lead to imbalances in environment. The third paragraph supports the opinion that urbanization badly affects the ecosystem. Ecosystems means मौलियाती निज़ाम, and thus the polluted urban environment affects the health and quality of life of the urban population. अच्छा, फर्स्ट पैराग्राफ में ओपिनियन ये है कि आबादी के बढ़ने का माहौल पे डायरेक्ट असर होता है। फिर दूसरे पैराग्राफ में ओपिनियन ये है कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से माहौल गैर मुतवाज़िन होता है। और थर्ड पैराग्राफ इस नज़रिए को सपोर्ट कर रहा है कि अर्बनाइजेशन या शहरी आबादकारी जो है वो माहौलियाती निज़ाम पर बुरी तरह असर करती है। और फिर आलूदा शहरी माहौल शहरी आबादी की ज़िंदगी की सेहत और क्वालिटी पर भी असरअंदाज होता है। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, कीपिंग इन व्यू द पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट ऑफ योर एरिया, डू यू एग्री और नॉट विद द कंटेंट ऑफ द लेसन, सपोर्ट योर व्यू विद सॉलिड आर्गूमेंट्स। यानी कि अपने एरिया की आबादी और माहौल को मद्देनज़र रखते हुए आप इस लेसन से एग्री करते हैं या नहीं, और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को फिर प्रूव करने के लिए ठोस दलाइल भी दें। Heading for the sixth question is I agree with the content. If you agree, then you will write I agree with the content. And answer is, so far the population and environment of my area is concerned. Concerned means ताल्लुक है, and so far जहाँ तक, ठीक है। I totally agree with the content of the lesson because the growing population of my area has affected the environment badly. Most of the families have built houses in the fields which decades ago were used for growing crops. Most of the green fields of my area have been turned into residential areas or commercial units. अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप इत्तेफाक करते हैं इस लेसन से तो आप फिर बता सकते हैं कि मेरे इलाके की बढ़ती आबादी ने माहौल पे बुरी तरह असर डाला है। बहुत सारी फैमिलीज़ ने खेतों में घर बना लिए हैं जहाँ पे दहाइयाँ पहले जो है वो फसलें उगाने के लिए इस्तेमाल किया गया था, और बहुत से सरसब्ज मैदान अब रिहायशी और तजारती इलाकों में तब्दील हो चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, कीप वन थिंग इन योर माइंड that 15 number in your paper consist of these questions, so you have to remember them very well along with spellings of words after writing on your copies. Here our lecture ends. Till our next class, take care of yourself and Allah Hafiz.